Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Biotechnology. What do you mean to the biotechnology? The biotechnology, the word biotechnology has come from two words. Bios mean a biology and technology mean a technological application. There is a bio means biology and technology means technical physical application. The biotechnology is defined as there are industry application of living organism and there are biological process such as biochemistry, microbiology and genetical engineering in order to make the best use of microorganism for a benefit of mankind. That is called biotechnology. The biotechnology only differ from here biochemistry, microbiology and genetical engineering. There is a lack of microorganism for a benefit for human beings. And biotechnology apply in many areas to produce food and medicine. In the development of new is a diagnostics tools, gene therapy, and DNA fingerprinting for a organ purpose. There is the next here application of biotechnology. The here application of biotechnology, health and medicine. First of all, come to health and medicine. There is a fighting infection disease. First of all, fighting infection disease. The biotechnology is used extensively in the study of infection disease such as a SARS, acute respiratory syndrome, SARS, SARC, serve acute respiratory syndromes and influenza. As a result, more effective pharmaceuticals has been developed. And the next year, development of vaccine and antibiotics. The using of technology, microorganism, and use for the development of antibiotics and vaccine to cure a disease. For example, bacteria Bacillus is a polymyxia and use to produce a polymyxin B. Antibiotic use to cure urinary tract infection. And fungus Penicillium notatum is used to produce a penicillin used by the cure pneumonia and many other bacterial infection. The next is a treating antigenic disorder. The disease can be occur when a genes become a defective due to the mutations. With the advancement in the biotechnology in the near future, it will be possible to use of gene therapy to replace or abnormal faulty genes with a normal copy of the same genes. It may be used to the treat elements such as a heart disease, inherited disease such as a SCID and thalassemia. And here is next is the forensic science. There is the most important area of forensic science. A lot of new technology has been to develop such as DNA fingerprintings and beside having to a number of other applications which have facilitated their speedily is the identification of criminals. The next application is an environment application. There is an environment cleaning up and managing to the environment. There is the most important here cleaning up and managing to the environment. Cleaning up environment and using living organisms called to the bioremediations. Bioremediations is a naturally occurring as well as a genetically modified macroorganism such as a bacteria, fungus and enzymes are used to break down toxic and hazardous substances present in the environment. There is a next here agricultural. There is agricultural is application for the biotechnology here. The biotechnology has also made it possible to production of crops, improve to disease resistance, is a herbicides resistance and insecticide resistance. A plants with the improved to nutritionally value for the is a livestock have also been obtained through the biotechnology and control of pest. There is a one application of biotechnology is the control of insect pest and there is a in genetical makeup to the pest is a change to the causing some mutation and this pest is become stagnant and do not be produced further. The next there is a manufacturing and bioprocessing. There is a most important application here. With the help of new biological techniques, it has become possible to grow the plants and produce compound for use in the detergent,
paint is a lubricant and plastic as a large scale. There is a manufacturing and bioprocessing here and food and drinkings. The biotechnology has also made to processing of food and their product easier. A prevention and storing of food to the consumptions later for become easily and cheap with the help of biotechnology. As seedless grapes and seedless citrus is the fruits has been to develop using a biotechnology. There is a most important application here. There is a next application is a industrial. Biotechnology has been used to the industry to produce a new product for a human consumptions and food additives has been developed which will help in the preservations. The preservation is the most important for the food. The microorganisms are used in the mass production of items such as cheese, is a curd and alcohol. तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जैविक औद्योगिक, देखिए इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी होता है और हमारा सिलेबस भी आज जो है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले तो आपको इसको अर्थ जानना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी होती आखिर क्या है, जैव औद्योगिक क्या होता है। देखिए जैव औद्योगिक जो है जीवित प्राणियों एवं उनकी जैविक क्रियाओं को औद्योगिक उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे आपको पता है कि जैव रसायन, सूक्ष्म जैविक, आनुवांशिक, अभियांत्रिक आदि इन्हें सूक्ष्म जीवों की सहायता से मानव कल्याण में उपयोग किया जा सकता है। यानी देखा जाए जैव औद्योगिक का मतलब जैव प्लस औद्योगिक। तो ये जैव का जो मतलब होता है दोस्तों और उसको उद्योग में उपयोग करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगर देखा जाए आपके समझ एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ था कि इंसानों ने क्या किया था कि जैव प्रतिरक्षा बनाने के चक्कर में कोरोना वायरस को जो है उत्पत्ति कर दिया गया। तो ये कितना विनाशकारी हुआ, लेकिन ये विनाशकारी नहीं होगा। हमने क्या करना है कि जैव प्रौद्योगिकी के रिगार्डिंग जो है हम ऐसे चीज़ों को बनाना है जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है और समाज के लिए कल्याण होता है। तो ये सारे कुछ जो होती है जो है जैव प्रौद्योगिकी में ही संभव है, यानी बायोटेक्नोलॉजी में ही संभव है। बायोटेक्नोलॉजी कई मानने में कई जगह पर हेल्पफुल रहता है। जैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे खाद्य उत्पादन एवं औषधि उत्पादन में, नए परीक्षण उपकरणों में विकास के रूप में, आनुवांशिक उपचार में और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, और न्यायिक जो है फोरेंसिक जांच के उद्देश्य से भी बायोटेक्नोलॉजी जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपके लिए समक्ष रख दिया है। आगे जो हमारा होगा यहाँ पर जैव का उपयोग। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है अनुपयोग भी लिखा जा सकता है या उपयोग भी, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब जनरली आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब होता है जो है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इसका क्या क्या है, यानी जैव औद्योगिक के उपयोग या अनुपयोग क्या है। अगर हम बात करते हैं जैव औद्योगिक के जो है उपयोग के विषय में, तो सबसे पहले जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जो होता है स्वास्थ्य एवं औषधि के ऊपर होता है। देखिए संक्रमण रोगों के विरुद्ध इसका क्या कार्य होता है। जैव औद्योगिक का विस्तृत प्रयोग जो है संक्रमण रोग जैसे SARS यानी SARS सब एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। यह अति तीव्र श्वसन संकलन होती है जिसमें फ्लू आदि के अध्ययन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अधिक प्रभावकारी औषधि विकसित किया जा सकता है। जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तो उसके प्रति जो है वैक्सीन भी बनाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। दूसरा है टीका एवं प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के रूप में विकास करना। कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों की सहायता से एंटीबायोटिक व टीके का निर्माण रोगों को इलाज के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पर जो है हम एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं और टीके का भी बनाते हैं इसके रिगार्डिंग। उदाहरण के तौर पे जो है बैक्टीरिया बैसिलस और जो है पायलोमाइसिस का उपयोग जो है पायलोमिक्सिन बी नामक एंटीबायोटिक्स जो है मूत्र पक्ष के उपचार के लिए किया गया था। कि उत्पादन के लिए कवक जो है पेनिसिलियम नेट्रस का उपयोग पेनिसिलिन निमोनिया के उपचार के लिए किया गया, उत्पादन के लिए भी किया जाता है। देखिए जब कोरोना वायरस भी फैला था तो बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट जितने भी थे उन्होंने जो है कोरोना वायरस के उपचार के लिए तरह तरह के वैक्सीन बनाने में जुट गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर रखता है। चाहे आपको पता है निमोनिया के उपचार के लिए हो या मूत्र पक्ष के उपचार के लिए हो, चाहे किसी भी एंटीबॉडी बनाने के बात आए तो यहाँ पर जो है जैविक प्रौद्योगिकी उपयोग में ही ये आता है। अगर हम आगे बात करें अनुवांशिक विकारों के लिए, बीमारी के उपचार के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी कितना हेल्पफुल है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब जीन अनुवांशिक इकाई
उत्परिवर्तन के परिणाम से विकृति हो जाती है तो रोग की उत्पत्ति होती है। यानी कभी भी कोई चीज़ विकृति हो जाती है तो उसे रोग बन जाता है। जैव औद्योगिक विकास द्वारा जो है निकट भविष्य में आनुवांशिक उपचार एक दोषपूर्ण जीन का उसी जीन की स्वास्थ्य प्रतिलिपियां द्वारा प्रतिस्थापन संभव हो सकेगा। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि जिस जीन के वजह से ये बीमारी पैदा हुआ है उसको कॉपी हम कर लेंगे और उसी प्रकार के जीन बना के जो है उसके उपचार के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो इसका जो है प्रतिलिपि तैयार करना कहते हैं, जिसमें जो है दूसरे जीन की जगह पहला जीन जो है स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग हृदय रोग के उपचार एवं आनुवंशिक रोग जैसे कि SCID या थैलेसीमिया के उपचार में ये किया जा सकता है, जो आने वाला भविष्य में जो है एक वरदान सिद्ध भी होगा। अगर देखा जाए इसका उपयोग फोरेंसिक्स विज्ञान में तो ये कई मायने में उपयोगी रहता है। इन नई तकनीक जैसे DNA जो है अंगुली ध्रुवण यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा अपराधियों की पहचान एवं आसानी हो जाती है। इस तरह से कई उपयोग और भी है, जैसे कि कोई माता पिता का अगर बच्चा गुम हो गया है या कई सालों के पश्चात मिला है तो इसमें भी जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए बहुत से जो आपदाएं आती है तो कौन व्यक्ति कौन है, किसका क्या पहचान है, तो हम इससे ही पता कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही ये सारे संभव हो पाएगा। तो ये कई मायने में जो है इंसानों के लिए वरदान सिद्ध भी हो सकता है। अगर बात आगे करें पर्यावरण के रिगार्डिंग तो देखिए पर्यावरण में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। कहते हैं पर्यावरण की सफाई एवं प्रबंधन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं जीवित जीवों की सहायता के पर्यावरण की सफाई को जो है जैव उपचार यानी बायोमेसिएशन कहा जाता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक एवं एंजाइम्स का उपयोग जो है पर्यावरण जो है विद्यमान विषैली एवं घातक पदार्थों को विघटित करने में भी किया जा सकता है। तो कहते हैं हमारे आने वाले भविष्य में जो है बायोटेक्नोलॉजी इतना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि हमें हमारे पर्यावरण को जो है साफ सुथरा में भी इसका इम्पोर्टेंट योगदान हो सकता है। तो ये सारे संभव तब होगा जब जो है बच्चे समझदार और पढ़े लिखे बनेंगे, तभी जो है उनके माइंड जो होगा इसका उपयोग भी करने के लिए तैयार रहेगा। तो इसलिए बच्चों को जो है सुचारू रूप से ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है। अगर देखा जाए इसका कृषि में तो कृषि में भी बायोटेक्नोलॉजी का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं जैव औद्योगिक में फसलों के उच्च उत्पादन में भी सहायता मिली है। ऐसे किस्म की विकसित किया गया है जो अधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता है और जो है शाकनाशी से जो है सहनशीलता एवं कीटनाशी प्रतिरोधक युक्त है। तो आज जो है आपने जितने भी हाइब्रिड चीज़ों को देखा है जाना है वो सारे बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है। अगर देखा जाए पशुओं के लिए उन्नत पोषण मूल्य के पादपों की नस्ल विकसित करने में जो है जैव औद्योगिक की महत्वपूर्ण भूमिका ही रही है। अगर आपने देखा होगा कि सहवाल जैसे नाम की जो है गायों की उत्पत्ति हुई है तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है, क्योंकि पहले के समय में ऐसा भी गाय होता था जो रोग से जल्दी ग्रसित हो जाता था और कुछ गाय ऐसे भी थे जो दुधारू थे और कुछ गाय ऐसे भी थे जिनमें किसी तरह का बीमारी नहीं होता था। तो बायोटेक्नोलॉजी ने इन सारे किस्मों को आपस में मिला के एक ऐसा किस्म तैयार किया जिसमें बीमारी से लड़ने की भी क्षमता थी, दूध देने की क्षमता भी थी, जिसमें सहवाल भी आता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है जो आज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित भी हुआ है। अगर बात करें इसको पीड़क नियंत्रण में तो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर भी अपना जो है विशेष योगदान दे सकता है। कहते हैं जैव औद्योगिक का एक उपयोग पीड़कों के नियंत्रण में भी होता है। देखिए पीड़क नियंत्रण में भी इसका उपयोग महत्वपूर्ण रहता है। कुछ जो है उत्परिवर्तनों द्वारा जो कीटों की आनुवंशिक संरचना में बदलाव लाया जाता है, ये पीड़क जो है जन अक्षय हो जाते हैं और नई पीढ़ी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो है पीड़क नियंत्रण में भी इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर देखा जाए उत्पादन एवं जैव संसाधन में तो इसमें जो है बायोटेक्नोलॉजी ने अपना चरम उत्तम कार्य किया है। कहते हैं नई जैव तकनीक की सहायता से उन पादपों का जो है उत्पादन संभव हो पाया है जिसके द्वारा जो है औद्योगिक का उपयोग बड़े पैमाने पर डिटर्जेंट, पेंट्स, स्नेहक एवं प्लास्टिक आदि बनाने में आज किया जा रहा है। तो ये सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है। अगर खाद्य एवं पेय पदार्थों में देखें तो आपको पता है कि जैव औद्योगिक की सहायता से खाद्य एवं उसके उत्पादों को जो है प्रसंस्करण जो है आसान हो गया है। और देखे जाए तो खाद्य सुरक्षा एवं संग्रहण
सरल एवं सस्ता हो गया है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग जो है कई खाद्य पदार्थ को संरक्षित भी किया जाता है, जिसमें जो है हमारे आने वाले भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है। जैव औद्योगिक सहायता से जो है बीज रहित अंगूर एवं संतरा को फलों का विकास हो पाया है। देखिए दोस्तों, ये जो आप संतरा और जो है अंगूर का जो लुत्फ़ उठाते रहते हो, तो कहीं मानने में जो है बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है, क्योंकि अगर बायोटेक्नोलॉजी शायद नहीं होता तो इसका जो है बीज का विकास या इसके पेड़ों का विकास करना संभव नहीं था, क्योंकि इसने जो था बीज देने की क्षमता पहले ही खो चुका था। तो इसको बायोटेक्नोलॉजी ने ही इसको बचा के आज हमारे समक्ष इसको प्रस्तुत कर दिया है, तभी हम जो है अंगूर और जो है संतरे का जो है बड़ी ही जो है प्यार नाल के साथ खाते हैं। तो ये जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर बात यहाँ पर करें उद्योग में, तो उद्योग में भी जो है बायोटेक्नोलॉजी ने अपने चरम सीमा को प्राप्त किया है। कहते हैं मानव उपयोग के लिए उद्योगों में जो है जैव औद्योगिक के प्रयोग से नए उत्पाद पैदा किए जा सकते हैं। खाद्य पदार्थों के विकास में भोज्य परीक्षण में सहायता भी मिली है। पनीर हो, दही हो, अल्कोहल हो आदि के जो है व्यापक पैमानों पर उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो है बायोटेक्नोलॉजी के ही देन है। The next topic is industry microorganism and their industry product. There is a most important topic here, industry microorganism and their industrial product. There is important microorganism used in industry include yeast, is the mules and the bacteria, filamentous bacteria, actomycetes and microbe are used in the manufacture of several products. Some of these are alcohol containing sewage and protein, vitamin, steroids, enzymes, yakuts, antibiotic and monoclonal antibody and biogas. Here one important thing here, the progress is a gene, is a manipulations and genetic engineering has introduced the use of culture is a mammalian cell and the Habrodomus as the industries. The Habrodomus was created by fusion of cell belonging to organism and different species. The next topic is the production of alcohol. Here's the containing and behaviors and here's the fermentation. The fermentation is a process by which a carbohydrate such as sugar are converted into the alcohol. There is a sugars are converted into the alcohol. The first is the glucose and there is present of yeast enzyme ethyl alcohol plus carbon dioxide plus ATP. The it is a capable for fermentation sugar of alcohol and fermentation is an energy adding process. In the mid 19th century, the Louis Pasteur and should be a fermentation by their yeast, Saccharomyces exclusive your beer and the buttermilk. A present yeast is began used on a large scale of varies and the bakery. There is a most important research for the Louis Pasteur and the bakery uses yeast leavens arise up to the make of bread. The yeast is also grow on the molasses and the packer and the soil. It is used to the rise of cake and the bread will as will be baking. And quality is a varieties of manufacturing and fermentation of sugar by the yeast. As Saccharomyces scrub it is called is variable is the source of carbohydrate and fermented by the yeast gives the beverage it is a specific flavor. For example, there are so this here a diagram. There is a gas processing, elimination of contaminant and the addition of desired organism and fertilization, yeast addition, fermentation, and cold production from a sugar, excess and yeast. There is a main processing here. And the information behind the obtained fermentation of grapes. The vines obtained from the fermentation of grapes. Grapes are fermented by the S cerevisiae and the soluble sugar, glucose and fructose are converted into the carbon dioxide and ethyl alcohol. And the fermentation is carried out a large tanks called the bioreactors. The various malt is fermented by the yards beer. The show in this diagram there is most important axis of yeast removal as in and development of final vine is bulleted here. And the next is a step taken for fermentation. Here show the step take of fermentation. The fermenters of tank and the nutrient mediums are utilized by their steam under pressure is the autoclave. And the
correct strain of the yeast is selected. The yeast is inoculated into the mediums, and inoculations can be done in the two way. The first year, yeast can be grow as a layer on the surface of nutrient mediums, and this is called to support growth system. And second is a cell or is a mycelium are suspended to the liquid medium. This is called to the suspended growth system. And next step is the care is taken to maintain to the right temperature, pH, oxygen and carbon dioxide concentration. The medium is a stir and the left of ferment. The sugar is the medium get fermented by enzyme released by yeast. The fermented product is taken out. And here some alcohols manufactured by yeast fermentations are ethyl alcohol, but is a butanol and glycerol. The same method is also is a lactic acid and acetic acid. There is a lactic acid and acetic acid is a vinegars by using of specific bacteria. The yeast extract is a left after removal of the is B race can be used to the animal feeds, and it is also rich of source of vitamins. तो यहाँ पर अगर बात हम करें औद्योगिक सूक्ष्म जीव और उनके औद्योगिक उत्पाद के विषय में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उद्योग में उपयुक्त महत्वपूर्ण जो है सूक्ष्म जीव निम्न तो है। कहते हैं इसमें खमीर की बात किया जाए, कवक, फफूंदी की बात किया जाए, जीवाणु की बात किया जाए, तत्व में जीवाणु जैसे जो है एक्टिनोमाइसेटिस की बात किया जाए, तो ये सारे के सारे जो होते हैं औद्योगिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कहते हैं अनोखे उत्पाद के निर्माण में जो है सूक्ष्म जीवाणु जो है माइक्रोबोग का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ जो है यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत है, जैसे कि होगा अल्कोहल युक्त पेय हो गया, चाहे वो दही हो, ठीक है, योगर्ट हो या प्रोटीन हो, प्रतिजैविक हो या क्लोनेंस हो, ठीक है, या विटामिन स्टेरॉइड्स और एंजाइम बायोगैस हो, ये सारे के सारे जो होते हैं इसी उत्पाद बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है उत्पादन करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो कहते हैं जीन जो है परिचालन एवं आनुवांशिक अभियांत्रिक जीन इंजीनियरिंग में हुए विकास के परिणाम स्वरूप जो है सर्वाधिक स्तनधारी जीव कोशिका एवं जो हाइब्रिडोमों को समावेश उद्योग में हुआ है। कहते हैं हाइब्रिडोमॉस विभिन्न प्रजातियों के जीवों की कोशिकाओं के संलग्न के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुआ है। तो ये तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज बहुत से जीव जंतु का उत्पादन भी जो हुआ है वो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर हम बात करें यहाँ अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के उत्पादन में, तो आपको पता है इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। केवल वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप जो है कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा अल्कोहल में बदल जाता है। कीवन का मतलब ही होता है कोई पदार्थ को गलाना, सराना। अगर मान लीजिए अगर हम अंगूर को सराते गलाते हैं, चाहे आप जो कहते हैं गुड़ को सराते हो, तो इससे जो है अल्कोहल पैदा होती है, अल्कोहल बनती है। केवल वह, ठीक है, इसमें जो है ग्लूकोज, खमीर, एंजाइम, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी एनर्जी रिलीज करेगा। खमीर शर्करा और अल्कोहल में कीवन करने में सक्षम है। कीवन एक ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो लुईस पास्चर जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिसको माइक्रो और बायोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। उन्होंने जो है पैट्रिक डिक्स पे जो है अगार में ये सारी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। तो लुईस पास्चर जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट माने जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ये उन्होंने दर्शाया था कि खमीर जो है सैक्रोमाइसीज जो है सर्विसेज द्वारा कीवन के परिणाम से बियर और छाछ पैदा होती है। तो ये जो है लुईस पास्चर ने साफ शब्दों में इसको बताया था। और वर्तमान समय में खमीर पर जो है बड़े पैमानों पर कीवन के लिए जो है मात्र मिसाल यानी ओसवनी और बेकरी जो है पाव, रोटी और बिस्कुट आदि के निर्माण जो है शाला में इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। खमीर के जो प्रयोग से आटे में खमीर उठाया जाता है। आपने देखा होगा कि आटे को कुछ समय अगर गूंद के रख दिया जाए तो वो काले पड़ जाते हैं, ब्राउन होने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें खमीर जो है ग्रोथ कर रहा है, जिससे ब्रेड बनता है। ठीक है, शीशे से और कहते हैं सिरे से जो उत्पन्न खमीर जो है पैक करके बेचा भी जाता है। खमीर ईस्ट केक एवं ब्रेड बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इनका प्रयोग जो होता है फुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर आप डायग्राम भी देखोगे तो उसमें भी जो है इसी प्रक्रिया को दर्शाया गया है कि कैसे जो है अल्कोहल बनती है और कैसे जो है अल्कोहल का उत्पादन होता है। तो जनरली बात है अल्कोहल का उत्पादन जो होता है किसी भी अंगूर हो चाहे वो गुड़ हो, उसको अगर सड़ा देते हैं कई दिनों तक,
ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में रखते हैं तो इसमें जो है अल्कोहल ग्रो बनना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं अल्कोहली पेय शर्करा में जो है खमीर सेक्रोलाइसिस सेरेविसिया द्वारा कीवन से बनता है, यानी ये फर्मेंटेशन मेथड से ही इसको बनाया जाता है। इसे क्यूइंग खमीर ये भी कहते हैं। खमीर द्वारा जो है क्यूइंग कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के अनुसार उसकी विशेष महक और स्वाद आता है। कहते हैं अंगूर शराब, अगर देखा जाए अंगूरी शराब जो है अंगूरों के कीवन से ही प्राप्त होती है। अंगूरों का कीवन जो है सेक्रोमाइसेस सेरेबियस द्वारा प्राप्त होती है और इसकी घुलनशील शर्करा जो है ग्लूकोज एवं फ्रिक्टोज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 या मिथिल अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है। तो अंगूर को अगर आप कीवन करते हो, फर्मेंटेशन करते हो, तो इससे जो है शराब का उत्पत्ति होती है, यानी अल्कोहल इससे प्रोडक्शन होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो कीवन बड़े बड़े टैंकों में किया जाता है, जिन्हें जैव रिएक्टर या बायो रिएक्टर भी कहा जाता है। जैव की शर्करा के कीवन के बियर बनता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ चित्र में भी आपको दर्शाया गया है। अब कहते हैं कि कीवन जो बनाने यानी फर्मेंटेशन की कौन कौन से चरण है, तो ये चरण जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर फर्मेंटर या टैंक का पोषक जो है पोषक पदार्थों को दाब के साथ भाप से जीवन रहित किया जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोक्लेव्स। ऑटोक्लेव्स के रिगार्डिंग जो है इसको जो जीवाणु रहित किया जाता है। अगर खमीर को उचित भेदम का चयन किया जाता है, खमीर के माध्यम से जो है आरोपित किया जाता है और जो है सरोपण यानी यह इनाकुलेशन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है खमीर को पोषक माध्यम की सतह पर एक परत के रूप में उगाया जाता है, इसे हम आधार वर्ण प्रणाली कहा जाता है। कोशिकीय एवं जो है कवक तंतु द्रव्य माध्यम से निलंबित रहते हैं, इसे निलंबन वर्धन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, आधार वर्धन प्रणाली और निलंबित वर्धन प्रणाली दो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। कहते हैं उचित तापमान पे पीएच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बनाए रखने में सावधानी भी बरती जाती है। अगर माध्यम को हिलाकर कीवन के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी माध्यम को जो है हिलाकर कुछ समय के लिए इसको कीवन यानी फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात खमीर द्वारा जो है निःसूत्र क्यूबकों द्वारा जो माध्यम की शर्करा का क्यूवन होती है, क्यूवित उत्पाद को बाहर निकाल लिया जाता है। खमीर के क्यूवन से बनने वाले कुछ एल्कोहल निम्न प्रकार है, जैसे कि एथिल अल्कोहल, ब्यूटेनॉल, ग्लिसरॉल। विशिष्ट जीवाणुओं द्वारा प्रयोग कर इसी विधि का लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका भी इसी से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कितना उपयोग होता है और ये सारे कार्य जो है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाया है। कहते हैं पेय के पृथक किए जाने के पश्चात बचा हुआ खमीर का जो है निचोड़ पशु खाद्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है अनेक विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए जो है खमीर का उपयोग जो है पशु के चारा के रूप में भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज yogurt and cheese making. The yogurt is mean to the curd and the cheese making here. And the next topic, at the home be a bite of yogurt to be milked to the set. There is the milk become yogurt to curd due to the milk curding enzyme released by the increasing of population of bacteria. The bacteria as a lactobacillus. The lactobacillus present in the curd, present in the starter. There is a table on a commercial scale making of yogurt as well as a cheese utilized. Is a net is a tablet for their purpose. A renise is the milk curdling of enzyme obtained from to the calf stomach. There is a calf stomach, and however this is a method is a popular anymore. Whether it be bacteria or the onions, when milk of the curdled milk is a protein cases is the separated from to the liquid which is called lines. The lactobacillus convert to the lactose into the milk into a lactic acid which is lower to the pH. The lower pH is a cases as a soiling which is the assembly for a preservation. Here the butter can be made by the voluntarily shaking, carrings and the shore milk. The fat is a globe whereas is a separate and form a butter. A start to the culture of Streptococcus ceremosis and the lactonoxtox is added to the milk when the butter, yogurt and cheese are made. So here show the fermenting of macrobiomes used for the dairy product. Here is a fermenting of product and fermenting of microorganisms and depressions. The yogurt is a Streptococcus, is a Thermophilus, and the Lactobacillus is a Bulgaria. And the descriptions here product made from a low and no fat milk or stabilizer like a added. And butter is a
is a lactococcus is elastics. The cream is incubated till of the desired acidity is achieved, flowing by the charrings and the washing and the salting. The next is the microorganism and antibiotics. In 1928, Alexander Fleming accidentally discovered that is a microorganism can inhibit the growth of another organism. Salmonella is a Weltzman in 1942 is a coin the terms of antibiotics. Antibiotics mean anti means purpose to the biotic means the living organism. There is a discover for Alexander Fleming is a accidentally for a microorganism. The antibiotic is a substance produced by the microorganisms such as bacteria, fungus, and which includes to the growth of another microorganism. And antibiotics are generally small molecules with a molecular weight less than 2000 dar, and they are not enzyme that antibiotic interfere with the vital metabolic process of pathogenic bacterium and prevent its growth of reproduction. The next stage is a well spectrum and the non spectrum antibiotics. Is the modern medicines have found a specific antibiotic for almost every different pathogens. The pathogens are most important here. Streptomyces is a bacterium. Here some of the most widely used of antibiotic like chloromephenol, erythromycins, tetralynes, etc. And this is called the septum antibiotics. The board septum is antibiotics and can be used against the more than one kind of pathogenic bacterium. Streptomyces and Penicillia is a narrow septum antibiotics used against a few pathogenic bacteria. And there is a next is a drawback of antibiotics. The use of antibiotics was a big step is occurring infections disease which is offered to the safe, sure and the relative expensive car. But even now we find many people suffering from bacterial disease. This reason for this are some people are allergic and particularly antibiotic. Some diseases are causing bacteria undergoes to the mutation and become resistant to a particular antibiotic to which they are sensitive earlier. And source of antibiotics here, some of common antibiotics and their source organism are given table. The here show the table major antibiotic and their source. देखो हमारा यहाँ पर जो अगला टॉपिक आया है वो है दही व पनीर निर्माण। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि दही एवं पनीर का निर्माण में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार जो है सहायक सिद्ध हुए हैं। कहते हैं घर पर हम दूध में थोड़ी सा जो है दही मिला देते हैं और यह जम जाता है। ऐसे दही में विद्यमान जो है लैक्टोबैसिलस की संख्या में वृद्धि के कारण संभव होता है। यानी लैक्टोबैसिलस के कारण ही जो है दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है। अगर देखा जाए व्यापारिक स्तर पर तो दही एवं पनीर के उत्पादन के लिए जो है नरेंट टिक्कियों का उपयोग किया जाता है। ये बछड़े के आमाशय से प्राप्त की जो है कीवक रेनिन है जो दूध को जमाता है। ये विविध अब उतनी लोकप्रिय नहीं है क्योंकि आज जो है ये साधारण शब्दों में आ चुका है, साधारण बातों में आ चुका है। कहते हैं अगर बैक्टीरिया जीवाणु या रेनिन दोनों से किसी की भी द्वारा जब दूध का दही बनता है तो द्रव्य से दूध जो है प्रोटीन कैसीन अलग हो जाता है और बचे हुए द्रव्य को जो है तोड़ पानी यानी वेल्स कहते हैं। और लैक्टोबैसिलस दूध में विद्यमान जो है लैक्टोज को लैक्टिकल अम्ल में परिवर्तन कर देता है जिससे जो है पीएच कम हो जाता है और कम पीएच को जो है खट्टापन उत्पन्न होता है जो है परीक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर यहाँ बात करें खट्टे दूध को जो है तेज़ी से बथने का जो है मक्खन बनाया जाता है जो कि बहुत आपको भी पता है कि जो ये सेंट्रीफ्यूजल मेथड होती है इसे दूध को जो है मथ के जो है मक्खन इसमें निकाला जाता है। कहते हैं बासा गोलकियों अलग होकर मक्खन बनाती है। जब मक्खन दही व पनीर बनाए जाते हैं तब एक प्रवर्धक संवर्धन यानी जीवाणु समूह जो है स्टोकैरियोकस क्रोमोसिस यानी लुकोस्टोसिस के दूध में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर देखा जाए दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त कीवन जीवाणु किस प्रकार कार्य करते हैं तो ये टेबल में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो अगर आप देख सकते हो तो इसमें दही है और मक्खन है। देखिए कीवन जो है सूक्ष्म जीवाणु यानी जो है एस्ट्रोप्लेटोकाकस, थैमोफाइलस और जो है
लैक्टोबैसिलस और जो है विगोरियंस, जिसमें है जो होता है वर्णित का कहा गया है कि कम वसा का जो है वसाहीन दूध से प्राप्त उत्पाद एवं जो है जिलेटिन्स स्थायीकारक का जो है संयोजन करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें मक्खन का, तो मक्खन जो होता है लैक्टिकस के रूप में विद्वान होता है, यानी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। अगर देखा जाए मलाई को एक अन्य जो है इनवोल्यूटेस वंचनीय गर्माहट करना पड़ता है जब तक वो इंद्रित अम्लता प्राप्त नहीं हो जाता। तब उपरांत जो है मलाई को मथ लिया जाता है और धोया जाता है और इसमें जो है नमक मिला दिया जाता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दूध उत्पादन के लिए उपयोग जो है केवल जीवाणु किस प्रकार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर यहाँ बात करें सूक्ष्म जीव एवं जो है प्रतिजैविक की, तो ये बात तो क्लियर हो चुका है कि आपको पता है कि 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने संयोग से ये खोज किया कि एक सूक्ष्म जीवाणु दूसरे सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकता है। तो ये एक्सीडेंटली ये खोज हुई, जो कि बहुत ही विशिष्ट बात थी। अगर बात करें मार्शल्स वक्समैन में, तो 1942 में जो है बायोटेकिक एंट्री प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब था एंट्री प्रति विरुद्ध बायोटिक्स जीवित जीवाणु प्रणाली। इसका मतलब यही होता है कि प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु एवं कवक द्वारा उत्पन्न किया गया पदार्थ है जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है। यानी ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कवर की गई थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, बेशकली एक्सीडेंटली ये खोज हुई, लेकिन बहुत काफ़ी जो है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये अपना और महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी इसी में काफ़ी हद तक आधारित हो गई। एंटीबायोटिक सामान्यतः छोटे अणु होते हैं जिनका अणुभार 200 डाल्टन्स के कम होता है, और ये केवल नहीं है। कहते हैं एंटीबायोटिक जो है रोगजनक जीवाणुओं के प्रमुख उपचारिक प्रक्रिया के साथ जो है व्यक्तिकरण करता है और इसकी वृद्धि और जनन को भी रोकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है। अगर बात करें व्यापक और सीमित प्रयोग करने वाले जो है एंटीबायोटिक की, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम के रूप में होती है। यहाँ पर बात आती है कि आधुनिक औषधि में लगभग सभी विभिन्न प्रकार के जो है रोगजनकों के लिए एक एंटीबायोटिक की खोज की जा चुकी है। कहते हैं स्ट्रोमाइसिस जीवाणु से कुछ सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त एंटीबायोटिक जैसे क्लोरोफेनिकॉस, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि प्राप्त होते हैं। कहते हैं इन्हें व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। यानी हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, और इसे एक से अधिक प्रकार के रोगजनक के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रयोग भी किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर देखा जाए एस्ट्रोप्लेटोमाइसिन की एवं पेनिसिलिन की, तो संक्रिय स्पेक्ट्रम यानी एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और इन्हें जो है सीमित रोगजनक जीवाणुओं के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। बात करें अगर एंटीबायोटिक की कमियों की, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाता है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग संक्रमण रोगों के इलाज में एक बड़ा ही कदम था। सुरक्षित, निश्चित एवं अपेक्षाकृत जो है सस्ता इलाज, लेकिन आज भी कई लोग जीवाणुओं के संक्रमण के रूपन होते पाए जाते हैं, और इसके निम्न कारण हैं। कहते हैं कुछ लोग एक विशेष एंटीबायोटिक के लिए संवेदनशील होते हैं, और कुछ रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु उत्पन्न के पश्चात एक विशिष्ट एंटीबायोटिक के जो है प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिसके लिए ये पहले संवेदनशील थे। यानी ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एंटीबायोटिक की कुछ कमियां भी यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में ढूंढा गया है। कुछ लोग एक विशेष एंटीबायोटिक के लिए अति संवेदनशील होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और कई जो होते हैं संवेदनशील नहीं होती है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एंटीबायोटिक के सूत्र की बात किया जाए, अगर यहाँ बात करें एंटीबायोटिक के और उनके सूत्र के विषय में, तो आपके समक्ष एक टेबल प्रस्तुत हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि एंटीबायोटिक के समूह है और इसके सूत्र है। अगर देखा जाए टेट्रासाइक्लिन की बात, तो इसमें जो है सेट्रोप्लेटोमाइसिन प्रजाति पाई जाती है। अगर बात करें क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की, तो इसमें जो है एस्ट्रोप्लेटोमाइसिस आर्यूफेसिन्स पाया जाता है। कहते हैं अगर बात करें एंटीबायोटिक समूह के क्लोरोरामफेनिकोल की, तो इसमें जो है एस वेनोजुलाई पाई जाती है। अगर साइक्लोहेक्सिमाइस की बात करें, तो इसमें जो है एस ग्रीसियस पाया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर जो है सेफलोस्पेरिन की, तो इसमें जो है सेफलोस्पेरिलियम्स यानी एक्रोमेनियम्स पाया जाता है। अगर पेनिसिलिन की बात करें, तो पेनिसिलियम जो है क्राइसोनेजम जो है क्राइसोनेजेनम्स में पाया जाता है। तो ये नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक है और इसके सूत्र हैं, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रखता है।
Our next topic is vaccination. The vaccination is the most important here. In 1790, his Edward Jenner observed to the milkmaid did not be get a smallpox as they were exposed to the mildew disease is cowpox. Jenner infected a boy with the cowpox or germs and there after 2 months with the smallpox germ. The boy did not be get a smallpox. Jenner is a proposed that if the melt of the altitude of the beginner germs were introduced into the body, they would be not be causing of disease. He gave the term of vaccine, Latin word vacca, means cow or vaccinations, for the weekend of germs and protective the inoculations. There is the most important here inoculations, and today the principle of vaccination has been to extended to be prevent attack of many disease when vaccines are made from to attend naturally disease as a causing of bacteria. They are termed as a first generation vaccine. The second generation vaccines has been to produced by the genetical engineering and recombinant DNA technology, about which you shall as a study in the next section. And there are second generation vaccine for a hepatitis B virus and herpesvirus are already in use. Vaccine synthesis from the chemical is called third generation vaccine. The next here is the production of the vitamins. There is the most important here. Vitamins are nutrient requires a very small amount for the essential metabolic reaction in the body. They are produced using to the biotechnology. Vitamin C was the first vitamin to be produced during to the fermentation process by using of bacteria. B12 is a cyanobacterium and B2 is a riboflavins where it is obtained from the liver extract. There is a production of the B12 involved to fermentation by the propanics bacteria. In the nature, B2 is found to the cereals, vegetables and yeast, but the yard of the B2 can be is enhanced to the 100 to 300 folded by using macro. Is production of biogas. The biogas is a conventionally source of fuel. Its use can be shave of fossil fuel, coals, kerosene, and petrol, which are fast getting depleted. And the biogas is made from organic waste, including is a fat called matter, is a cow dungs or feces have, is a cellulose, and the energy used the fuel as it comes from the methane, the CH4. The cow dung form to the primary source of biogas. In India, cow dung is available in the plenty in the village and the small scale of methane generating plant has been to designed. So here, any biodegradables is a substance which can be decomposed by bacteria, can be fermentation and anaerobically in the absence of oxygen by the methane producing is a organics bacteria. The cow dung is a forces are collected and put in a biogas is a digester and fermenter. A large vessel is a which formations can be take place. A series of chemical reaction occur in the presence of meta-organic bacteria CH4 as a generated bacteria and leading to the production of methane CH4 and carbon dioxide. When the generated biogas few is a parameter have to be taken into the account. There are the first here. Our formation should be a anaerobic environment and no free oxygen should be present. And second here, the pH has fermenters is should be close to the natural around to 6.8 to 7.6. The next here, the metaorganic bacteria are to be used to the fermentation. Here is a several kind of the reactor has been to design. So one side of reactor is the input that is there introducing of cow dung or fecal matter into the reactor. Well, other side of the reactor has on the outlet to removal of biogas. The materials is left behind is called slurries. There is a gas get a story about the slurries level. Slurries form to excellent manure. There is the most important and there is an advantage of biogas here. The biogas is a fuel used to be a cook food and the light lamp. So that is left after biogas production from a soil container is a manure. And the biogas is a much cheaper than the LPG, liquefied petroleum gas, which we are commonly used there a day in our
हाउसेस। तो यहाँ पर बात अगर हम करें टीकाकरण की, देखिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं टीकाकरण करने से कई तरह की बीमारियों से जो है समय रहते छुटकारा मिल जाती है। अगर देखा जाए 1790 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने पाया कि ग्वालिनों को चेचक यानी मसूड़े का यानी स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वे इसे हल्की व्याधि यानी जो है गौम सूरी का यानी काउ पॉक्स के लिए जो है उद्भिसित रहती है और इससे ग्रस्त हो चुकी होती है। जेनर ने एक बच्चे को जो है ग्लास्कुरिका रोगाणुओं से संक्रमित किया और 2 माह बाद चेचक सुरिका जीवाणु से संक्रमित भी किया। बच्चों को चेचक सुरिका नहीं हुई। जेनर ने यह प्रस्ताव दिया कि यदि कमजोर एवं दुर्बल जीवाणु शरीर में प्रवेश कराए जाएं तो उनसे रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दुर्बल जीवाणु को अगर प्रवेश करते हैं तो हमारा जो है एंटीबॉडी पहले ही इस पर अटैक करके उसको तहस नहस कर देती है। उसने जो है वैक्सीन लेटिका बैक का गाय शब्द का प्रयोग किया और दुर्बल जीवाणु एवं उनके प्रतिरक्षा टीकों को जो है टीकाकरण वैक्सीनेशंस भी कहा। तो इस प्रकार वैक्सीनेशन का यहाँ पर नाम जो है सर्वप्रथम सामने आया। आज टीकाकरण का सिद्धांत कई रोगों के आक्रमण को रोकने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जब टीका जो है द्रव्य द्रव्यलित रोगकारी जीवाणु से बनाए जाते हैं तो उन्हें प्रथम पीढ़ियों के टीके कहा जाता है, यानी प्रथम पीढ़ी के टीका होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रहती है। अगर बात करें यहाँ अनुवांशिक अभियांत्रिक एवं डीएनए पुनर्निवास तकनीक द्वारा पैदा किए वैक्सीन को, तो इसमें कहते हैं द्वितीय पीढ़ी की वैक्सीन भी इसको कहा जाता है, जिसके विषय में आप अगले खंड में जानेंगे और समझेंगे। कहते हैं द्वितीय पीढ़ी के टीके जो युक्त शोध बी जो है विषाणु और हर्पिस विषाणुओं के लिए प्रयुक्त होती है, प्रयोग में लिए जा रहे हैं। रसायनों से जो है संश्लेषित टीके जो है द्वितीय पीढ़ी टीके भी कहलाती है। अगर बात करें यहाँ पर विटामिनों के उत्पादन के लिए, तो कहते हैं विटामिन ऐसे पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता बहुत ही अल्प मात्रा में शरीर की आवश्यक जो है अपचायी प्रक्रिया के लिए पड़ती है। विटामिनों का निर्माण जो है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए किया जाता है और विटामिन सी जो है Q1 की प्रक्रिया में जीवाणु प्रयोग द्वारा उत्पन्न होने वाले पहला विटामिन है। कहते हैं अगर देखा जाए B12 या जो है साइनोकोबायमीन एवं B2 या रिबोफ्लेविन्स युक्त सार से जो है सार से प्राप्त किए गए हैं। B12 के उत्पादन में जो है प्रोपिनोलिक्स जीवाणु का Q1 जो सन्निहित होती है और प्राकृतिक में जो है B12 अनाज और जो है सब्जी एवं खमीर में पाया जाता है। लेकिन B12 के उत्पादन के जीवाणुओं को प्रयोग से जो है 100 से जो है 300 गुना बढ़ाई जा सकती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर बात करें यहाँ पर जैव गैस का उत्पादन के, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। आपको पता ही होगा कि बायोगैस एक नया परंपरागत ईंधन होते हैं। इनके प्रयोग से जीवाश्म ईंधन, कोयला, केरोसिन और पेट्रोल की बचत हो सकती है, लेकिन लगातार ये कम होते जा रहे हैं। बायोगैस का निर्माण जो है कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ का मल द्वारा किया जाता है। गाय के गोबर या जो है मल में जो है ग्लेनोसोलूसोलोस होता है और ईंधन के रूप में प्रयुक्त ऊर्जा जो है मीथेन से प्राप्त होती है। गाय के गोबर में बायोगैस का प्राथमिक स्रोत होता है। भारत में गाय का गोबर जो है ग्रामीण क्षेत्र में प्रचुरता से उपलब्ध होती है। छोटे पैमाने के जो है उत्पन्न कराने वाले संयंत्रों का निर्माण भी किया जा सकता है। कहते हैं कोई भी जो जैव निम्नीकरण जो कि जीवाणु द्वारा अपघटित किया जा सकता है, पदार्थ का केवल मीथेन पैदा करने वाले जीवाणुओं का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जा सकता है। गाय गोबर मल एकत्र करके जो है पाचित या Q1 या फर्मेंटर एक बड़ी पात्र में जिसमें Q1 होता है में रख दिया जाता है और मीथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं की उपस्थिति में बहुत सी रासायनिक क्रियाएं भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है मीथेन यानी CH4 का निर्माण होता है और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। बात करें बायोगैस बनाते समय कुछ Q1 प्रचालों को बनाए रखना पड़ता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अगर बात करें पहली तो Q1 ऑक्सीजन रहित वातावरण होना चाहिए, क्योंकि मुक्त ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर Q1 का pH उदासीन यानी न्यूट्रलाइजेंस मान को जब रखा जाए तो ये जो है 6.8 से 7.6 के बीच में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर Q1 के लिए मीथेन जनक जीवाणु का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि जो है इसका कई बायोगैस बनाते समय कुछ जो है प्रचालों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर रिएक्टर की बात करें तो रिएक्टर के अनेक प्रकार जो है प्रतिरूपी तैयार किए जा चुके हैं। रिएक्टर का एक सिरा निवेश के लिए अथवा रिएक्टर में गाय का गोबर का मल पदार्थ प्रवेश कराने के लिए होती है। रिएक्टर का दूसरा सिरा जो होता है बायोगैस के निकालने के लिए क्या होता है और बचे भाग को जो है कर्दम यानी स्लरी कहते हैं। गैस कदम को जो है ऊपरी तरल पर इकट्ठा हो जाता है और कदम
एक बहुत ही उत्तम खाद है, यानी ये बहुत अच्छा मैन्योर होती है और ये कृषि के लिए जो है काफ़ी आदर्श के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगर यहाँ बात करें बायोगैस के लाभ की, तो देखिए बायोगैस खाना पकाने व लैंप जलाने आदि में उपयोग किया जाता है। बायोगैस के निर्माण के बाद बचा जो है कदम मूत्र यानी अनुकूलम खाद बनता है, यानी मैन्यूर बन जाता है, जो कि कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और किसी प्रकार के पोल्यूशन भी नहीं फैलता है। बायोगैस जो है द्रवी युक्त पेट्रोलियम गैस से भी सस्ती होती है, तो ये कई मायने में आने वाला समय में ये भविष्य में ये बहुत बड़ा जो है अपना कार्य सिद्ध कर सकता है। So our next topic is genetical engineering. There is the most important here, genetical engineering. On the engineering fixes as the machine to be make it the work efficiently. Body is like a machines and the genes there are nucleotide sequence is a DNA have to information for a product to be run this machine. With the progress in the molecular biology technology techniques has been to developed by which either scientists can be now is a manipulate genetical material and replace genes are replaced. There is the most important here. There is a genes product in the body is a make a identically copy of these genes and store them a gene library. This is called genetical engineering. There is a next here. The importance of genetic engineering. There is the most important here. The importance of genetic engineering. You know that is a diabetes as a meltus patient is genetic disorder. There is a genetic disorder. A diabetes patient lack of the genes which has the information of the synthesis of insulin. Therefore, for such a person cannot be secrete insulin. Take another example. A person suffering from a is a thalassemia and the lack of the gene for hemoglobin and can survive only through the frequently blood transfusion. A person suffering from a sickle cell anemia has the alternative genes was protect make the red blood complex and abnormal is exposure to be oxygen because they contain a faulty hemoglobin. And here, humans suffering from a genetic disorder such as this cities have now hope and genetic engineering. The genetically engineering is a copy of DNA can be produced and stored in a gene libraries to be used there are required. There is the most important here. And in the previous section of this lesson, you have a study about their use of microbe to produce a various product on a commercial scale. The currently bacteria are beginning genetically is manipulated to be act of biologically factory to produce a various kind of proteins such as enzyme, hormone, antibody through the genetic engineering. Researchers has isolated genes which can be used to produce effective vaccine. The worker has also developed bacteria strain and through the genetic manipulations and which can be degraded harmful environment pollutants. अगर यहाँ पर बात करें आनुवांशिक अभियांत्रिकी की, तो ये बहुत काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रखता है। कहते कोई इंजीनियरिंग एक तंत्र को लगाकर उसे जो है कार्य क्षमता बनाता है। शरीर भी एक यंत्र के समान ही है और ये जीन अनुवांशिक इकाई जो है डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम में इस यंत्र को चलाकर उत्पादन निर्माण की सूचना देता है। आणु जैविक में प्रगति के साथ ऐसी तकनीक का विकास किया जा चुका है जिसकी सहायता से वैज्ञानिक अनुवांशिक पदार्थ का अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। शरीर में अनुवांशिक इकाई का जो है अनुवांशिक पदार्थों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं और इसके सामान्य प्रतिरूप तैयार भी कर सकते हैं और इन्हें जीन लाइब्रेरी यानी जीन लाइब्रेरी में संग्रहित कर सकते हैं। इसे अनुवांशिक जो है अभियांत्रिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। अगर बात यहाँ पर करें अनुवांशिक अभियांत्रिक का महत्व के विषय में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। आप जानते हैं कि मधुमेह जो है डायबिटीज़ जो है मेलिटस एक अनुवांशिक विकार बीमारी है। एक मधुमेह के रोगी में उस जीन की कमी होती है जिसमें इंसुलिन संश्लेषण के लिए जो है सूचना होती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति इंसुलिन का स्वत नहीं कर सकता है। अगर दूसरा उदाहरण देखें तो इसमें आ जाता है थैलोसेमिया, जिससे पीड़ित व्यक्ति में जो है हीमोग्लोबिन का जीन नहीं होता है और इसे जो है बारंबार रक्तदान द्वारा ही जीवित रखा जा सकता है। अगर यहाँ बात करें दाल लोहित कोशिका अरक्ता का, तो कहते हैं सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में एक जो है परिवर्तन जीन होता है जिसका उत्पादन ऑक्सीजन से जो उद्भासन के परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं में असमानता का उत्पन्न करता है, क्योंकि उनमें दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन भी होते हैं। उपरोक्त प्रकार के अनुवांशिक विकारों से जो है पीड़ित व्यक्तियों के लिए अनुवांशिक अभियांत्रिक में अब आशा की किरण दिखाई देती है।
कहते हैं अगर डीएनए की आनुवांशिक अभियांत्रिक प्रतिलिपियों अब बनाकर जो है जीन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर जो है उपयोग में भी लाया जाना संभव है। इस अध्याय से जो है पूर्ववर्ती खंडों में अपनी जीवाणुओं का प्रयोग से जो है व्यापारिक स्तर पर अनेक उत्पाद का निर्माण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में आनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा जीवाणुओं का जो है आनुवांशिक परिवर्तन किया जा रहा है ताकि वह जैव फैक्ट्री या निर्माणशाला के रूप में कार्य करके अनेक प्रकार के जो है प्रोटीन जैसे Q1, हार्मोन, प्रतिपिंड आदि का निर्माण कर सके। तो our next topic is a recombinant DNA technology. There is the most important technology here is recombinant of DNA technology. A genetic engineering may be defined as a construction and the utilization of new DNA molecules that has been to engineered by the recombinant DNA techniques. The techniques of genetic engineering is the production of the recombinant DNA. Recombinant DNA, as the name suggests, to involve the cutting a piece of original DNA and inserting is the place of different segment of DNA having desired to the character. The recombinant of the recomposed DNA is then to copy of multifolded inside bacteria cells and stored in the genes library for user require. The multi copies of genes are termed a clone DNA or clonic genes. Here is two important things here. A causing genetic change by the artificially manipulating DNA is a gating engineering. And next here is the clone is a group of genetically identical cells. Such cells are descendants of single cells. When a bacterium with a recombinant DNA drives several times, it is provide a clone containing a special segment of DNA from another species. And the production of genetically identical individually are genetic materials from a single cell is called cloning. There is the most important here recombinant DNA technology resulting from the two discovery made well there experimentally with the bacteria. The first here, the presence of plasmodium is extract of chromosomal DNA fragment in the bacterial cell and which replicate along with the bacteria DNA and can be used as a vector for carrying foreign DNA. And second here, the presence of a specific instructions of enzyme which attack and cut of DNA at a specific site. That is the most important here. And the next topic here, there are tools and steps of recombinant DNA technology. There is the most important here. A recombinant DNA technology is a cut and paste technology. A specific nucleotide sequence are cut from a DNA of human or other animals, plant are pasted into plasmodids. DNA of the plasmodids carrying nucleotide sequence of another organism is the recombinant DNA. It is injected into the bacteria. The bacteria divide to the is repeatedly and the clone of bacteria with the recombinant DNA is obtained. That is the most important. But five requirement of recombinant DNA technology are here: a cell culture, plasmodids, host bacteria, destruction of endonuclease enzyme, and the ligase. There is the most important. The first here, cell culture. The cell culture is a culture cells of animal or plant or even to bacteriums carrying of the requirement gene nucleotide sequence of DNA in a nucleus. And the second here, the enzyme restricted endonuclease. The here, destruction of endonuclease cut a short specific DNA sequence. There are many different destructions of endonuclease found in bacteria. Each of these enzymes very specifically recognized as a particular DNA sequence, usually 4 to the 6 based, and cut it. These enzymes are molecular sensors. They either cut both the strand at the same place or at a different place so that the two DNA strands hang out of two end and two cut of the end of the DNA segment release the cut part of their instruction fragment. The end are single standing and called Stackley end. This piece of DNA containing a particle genes can be obtained by the selecting particles destruction endonuclease. And third here is the plasmids. There is a plasmids are extract a chromosomal DNA molecules in bacterial cell which have a sequence as a matching those are required genes and can be similarly cut by the same destruction enzyme. The plasmids can be readily enter bacteria or yeast and other especially is a reproducing cell. There are next here DNA ligase.
It is any enzyme called the joining enzyme. There is joining enzyme since it is joined two DNA fragments, both of which have having strictly end. The ligase is the molecules as glue. And there is next is the fifth host bacteria. The host bacteria are bacteria was the plasmid used for carrying of foreign DNA. The next here is sequence step of recombinant DNA technology. There is the most important here. A specific extraction enzyme is selected. The cell culture where the required gene in the cell is obtained and extraction enzyme cut the DNA at the two end of the specific genes and destruction fragment of obtained. And same extraction enzyme cut a matching DNA sequence from a plasmodids. That is the most important here. And the also is a ligase is joint restriction fragment in the place is vacated by their cut DNA segment of plasmid. The plasmid become a recombinant plasmid containing a foreign DNA fragment shown in the figure. If the DNA is a recombinant DNA since its plasmids can carry a foreign DNA, that is called the clone vector. The clone vectors there are seen there are plasmid carry a foreign DNA. It's called clone vector. The bacteriophagous is a virus can be also function of clonal vector. The recombinant plasmid are then placed with the competent is a cell to enter the bacteria. And the bacteria divided is recombinant is plasmid replicate along with the bacteria DNA. A large population of bacteria, more than 2 million, containing a recombinant DNA can be obtained in the less than 10 hours. And also here there is a multiple identical copy of DNA fragment inserted into the plasmid of the bacteriophagous. Bacteria virus are then obtained and is preserved in a DNA libraries. And this DNA is a fragment are cloned to DNA. So here show the diagram step of formation of the multi copies of recombinant DNA and DNA library. There is the most important. The restriction enzyme may cut off a specific site in all the chromosomal and organism cell and fragment of the chromosomal DNA, and there goes ways to join of the chromosomal and plasmid DNA using. And there is some restriction enzyme used to the cut of plasmodids and cut plasmid DNA. There is a formation of recombinant plasmid containing of DNA fragment and plasmid insect into the host cell is the amplification. There is a step of formation of multi copies of recombinant DNA and DNA library. There is the most important here. देखो यहाँ पर बात आया है पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी के विषय में। देखिए ये बहुत आसान बात है, कहते हैं इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि हम पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। कहते हैं अनुवांशिक अभियांत्रिक को नए डीएनए अणुओं के निर्माण और उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पुनर्योग डीएनए तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुवांशिक अभियांत्रिक को तकनीकी पुनर्योजन डीएनए के निर्माण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और बात करें पुनर्योजन डीएनए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मूल्य डीएनए का एक खंड काटकर उसके साथ एक भिन्न डीएनए जोड़ दिया जाता है। क्योंकि तो दोस्तों ये काफ़ी टेक्निक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ आनुवंशिकता हमें मिली है तो उसको डीएनए को काट के जो है दूसरा डीएनए जोड़ा जा सकता है। तो ये टेक्निक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। पुनर्योजित या पुनर्निर्मित डीएनए की कई गुना प्रतिलिपियाँ जीवित कोशिकाओं के अंदर निर्मित किया जा सकता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कई कॉपियाँ जो है हम इससे बना सकते हैं। इन्हें भविष्य में आवश्यकता पड़ने प्रयोग किए जाने के लिए जो है जीन लाइब्रेरी में संग्रहित किया जाता है। जीन की कई प्रतिलिपियाँ जो है क्लोनित डीएनए या क्लोनित जीन भी कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। अगर यहाँ बात करें कृत्रिम रूप में डीएनए परिवर्तन के फलस्वरूप आनुवांशिक परिवर्तन एवं आनुवांशिक जो है अभियांत्रिक कहलाता है। तो ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि कृत्रिम रूप से डीएनए परिवर्तन के फलस्वरूप आनुवांशिक परिवर्तन या आनुवांशिक अभियांत्रिक कहलाता है। क्लोन एक आनुवांशिक रूप से सामान्य कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाएं एक ही कोशिका की वंशज होती है जब तक इसको पुनर्योजित डीएनए जो है जीवाणु अनेकों बार विभक्त होता है तो इसमें एक विशेष खंड युक्त डीएनए वाला क्लोन प्राप्त होता है। और एक कोशिका द्वारा जो है आनुवांशिक रूप में सामान्य व्यक्ति या आनुवांशिक संग्रह का उत्पादन जो है क्लोनिंग कहलाता है। तो क्लोनिंग यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को भी मिला है। तो आप समझ जाइए क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग में यही है, जब पुनर्योजन डीएनए जीवाणु अनेक बार विभक्त हो जाता है तो इसके एक जो विशेष खंड युक्त डीएनए वाला क्लोन प्राप्त होती है और एक कोशिका द्वारा आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति या आनुवांशिक संग्रह जो है सामग्री का उत्पादन क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है।
अगर यहाँ बात करें कि पुनर्योजन डीएनए तकनीकी जीवाणु पर किए जा रहे प्रयोग के फलस्वरूप हुए 2 खोजों का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो परिणाम आया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जीवाणु कोशिकाओं में जो है प्लाज्मोडिड्स या अतिरिक्त गुणसूत्रों वाले डीएनए खंडों की उपस्थिति जो जीवाणु डीएनए के साथ जो है प्रतिकृत होते हैं बाहरी डीएनए के वाहक की भांति प्रयोग किए जा सकते हैं। विशिष्ट जो है नियंत्रण किवों की उपस्थिति जो कि डीएनए पर आक्रमण करते हैं और उसे जो है विशेष स्थान पर काटते भी हैं। तो ये तकनीक काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे चल के बन सकती है। यदि बात करें यहाँ पर हम पुनर्योजन डीएनए औद्योगिक में तो प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का भी चलन होते हैं। कहते हैं अगर पुनर्योजित प्रौद्योगिकी एक काटो और चिपकाओ वाला विधि है तो विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स उपकरणों का जो है मानव एवं अन्य पशु अनुपादकों में डीएनए काट कर जो है प्लाज्मोडियम में चिपका दिया जा सकता है। तो भविष्य में इसका बहुत आगे खोज भी हो सकती है क्योंकि डीएनए को काट के किसी दूसरे जीव में लगाना ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बात जो है एवोल्यूशन फिल्म में भी दिखाई गई थी जहाँ पर डीएनए के साथ जो है छेड़छाड़ की गई थी। अगर बात करें प्लाज्मोडियम्स के डीएनए में तो अन्य जीव जो है न्यूक्लियोटाइड्स का वाहक होता है और पुनर्योजन डीएनए कहलाता है, यानी पुण्य योजित डीएनए के रूप में धारण कर लेता है। पुण्य योजन डीएनए को जीवाणु में जो है प्रविष्ट कराया जाता है और जीवाणु जो है बार बार विभक्त होते रहते हैं और पुण्य योजन डीएनए युक्त जीवाणु का जो है क्लोन प्राप्त हो जाता है। तो ये क्लोन प्राप्त करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। कहते हैं अगर पुण्य योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की 5 आवश्यक बातें होती है तो पहला तो यही है कोशिका संवर्धन, प्लाज्मोडिड्स जो है प्रपोषी जीवाणु, डिटेक्शन जो है एंडोन्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो ये पांचों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर तो पहली बात यही आती है कोशिका संवर्धन में। देखिए एक पशु का जो है पादप या जीवाणु को एक जो है अपेक्षित जीन डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से वाहक होती है। अगर बात करें दूसरी को तो जो है क्यूबन प्रतिबंधन एंटोन्यूक्लियस यानी जो है रेस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियोटाइड्स विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों की छटाई करता है और जीवाणु में विभिन्न प्रकार के जो है रेक्टिफिकेशन एंडोन्यूक्लियास पाए जाते हैं। प्रत्येक एंजाइम विशेष रूप से एक निश्चित प्राय 4 से 5 क्षार के डीएनए अनुक्रम को पहचान लेता है और इसे जो है काटता है। ये क्यूबन जो है आणविक कैंचियाँ है, ठीक है, ये आणविक कैंचियाँ हैं जो ये दोनों जनतंतुओं में एक स्थान पर या 2 विभिन्न भागों में काट सकती है। जिसे 2 डीएनए तंतु 2 सिराओं पर काटने के जो है डीएनए खंड के 2 सिरों पर 2 जो है कटे भाग को प्रतिबंधित खंड की भांति प्रयुक्त भी किया जा सकता है। और सिरे को एकल तंतु होते हैं उन्हें हम लासेदार सिरे भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस प्रकार एक विशेष जीन युक्त डीएनए खंड का जो रजिस्ट्रेशन जो है एंडोन्यूक्लियास के चयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये बात यहाँ पर क्लियर आती है कि अगर मान लीजिए कोई डीएनए है तो डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है कि डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो भी आनुवंशिकता है उसको काट के हटा देते हैं और उसकी जगह दूसरा डीएनए जो है यानी सेट करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को जो है आणविक कैंचियाँ नाम दिया गया है जिसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो इससे हो सकता है कि बहुत से आनुवंशिकता के जो है दूर किया जा सकता है, लेकिन इसका भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा ये तो समय ही बताएगा। यदि बात करें इसके हम प्लाज्मोडिड्स की तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडिड्स एक जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय अणु हैं जिनमें वांछनीय जीन की भांति ही मेल खाने वाला अनुक्रम होता है और इन्हें सामान्य जो रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम द्वारा सामान्य प्रकार से काटा जा सकता है, यानी काटने का ये एक तकनीक होती है। प्लाज्मोडिड्स सहज रूप से जीवाणु और खमीर अन्य शीघ्रतापूर्वक जो है प्रजननकारी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। डीएनए लाइगेज आ जाता है चौथा नंबर पे। डीएनए लाइगेज क्या है? देखिए ये एक चिपचिपा सिरे वाला एक डीएनए खंड को दूसरे डीएनए खंड से जोड़ सकती है, यानी सील बंद कर सकती है। तो इसको लाइगेज एक जो है आणविक सरेस भी होती है, यानी डीएनए जो है लाइगेज को जो है एक जोड़ने वाला क्रिया भी कह सकती है। अगर बात करें प्रपोषी जीवाणु के तो प्रपोषी जीवाणु ऐसा जीवाणु होता है जिसका प्लाज्मा में बाहरी डीएनए का एक वाहक होता है। यदि बात करें यहाँ पर पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के चरणों का अनुक्रम की तो आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट जो है रजिस्ट्रेशन एंजाइम चयन किया जाता है और कोशिकाओं में वांछित जीन की कोशिका संवर्धन भी किया जाता है। और जो है कहा जाए तो रजिस्ट्रेशन एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जीन के 2 सिरों पर काटा जाता है और एक न्यूक्लियोटाइड खंड को प्राप्त भी किया जाता है, जैसे हम चित्र में भी देखेंगे। अगर बात करें चौथी बात की तो यही बात यहाँ पर आता है कि यह जो है रजिस्ट्रेशन एंजाइम एक प्लाज्मिड्स मेल खाते हुए एक डीएनए अनुक्रम को काटता है। देखिए यहाँ पर डीएनए की बात बताई गई है कि किस प्रकार जो है दूसरे डीएनए के साथ जो है पहले डीएनए को हम सेट कर सकते हैं और इससे जो है कई मायने में कई चीज़ों को बदलाव किया जा सकता है।
तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक वरदान सिद्ध भी हो सकता है। अगर हम लाइगेज प्लाज्मोडियस के डीएनए खंड को काटने से भिन्न हुए स्थान पर जो है स्टेकेशंस खंड को जोड़ते हैं तो जो है प्लाज्मिड्स एक बाहरी डीएनए खंड युक्त जो है पुण्य योग यानी प्लाज्मिड्स कहते हैं, इसलिए इन्हें क्लोनिंग भाग यानी क्लोन वेक्टर भी कहा जाता है। जीवाणु विषाणु भी जो है क्लोनी वेक्टर्स की भांति भी कार्य करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। पुण्य योगज यानी प्लाज्मोडियस जब जीवाणुओं में प्रविष्ट होते हैं तो भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहता है। कहते हैं जीवाणु विखंडन होते हैं और पुनर्योजन प्लाज्मोडियस जो है जीवाणुक डीएनए के साथ जो है प्रतिकृत डिप्लीकेट होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। बात करें यहाँ जीवाणुओं की बड़ी संख्या में तो कहते हैं 10 लाख से अधिक, जिसमें जो है पुनर्योजन डीएनए विद्यमान होते हैं 10 घंटे से भी कम समय में प्राप्त किए जा सकते हैं। डीएनए खंडों के अनेक सामान्य प्रकृतियाँ जो है प्लाज्मोडियस जीवाणु भोजी विषाणुओं में प्रविष्ट होते हैं और इन्हें एक डीएनए लाइब्रेरी में सुरक्षित भी रखा जाता है कि आने वाले भविष्य में जो है इसका जांच पड़ताल किया जाए और आने वाले भविष्य में जो है एक वरदान सिद्ध भी हो। कहते हैं ये डीएनए खंड जो है क्लोनिक डीएनए के ही एक रूप होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो इसमें बहुत क्लियर बात दिखाई गई है कि जीवाणु गुणसूत्र कैसे जो है डीएनए पार्ट को काट के जो है नए जीव में जो है बनाया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि इसके डीएनए खंडों से जो है नया जीव की उत्पत्ति करने में ये जो है एक वरदान सिद्ध भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं अगर कुछ चीज़ों की एडवांटेज होती है तो कुछ चीज़ को डिसएडवांटेज भी साथ में रहता है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट है तो कुछ इसका नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा।